this for this session, and we know much lesser than sir, and so I will not come in between you and the opening address, and request Mangla sir to give us an opening address. Thank you. Good afternoon, everybody. Very nice to see our senior colleagues. Mr. Pandey is here. A.K. Pandey, ex-director IRMI, present director IRMI, Mr. Prashad, Ravi Kumar, and all our worthy colleagues, senior most in IRSB cadre. I, on behalf of IRMI, welcome you all to this learning session. As we all know, PCMEs are very busy officers. So, but still, that's why this training was broken into 2 spells of half days. And idea is that let us learn. That's a simple thing. And I myself, I'm looking forward to learn few things here. Because although it is a DPRS and we have dealt with the DPRS as EMU, MEMU, train sets. Northern Railway has got very good experience. Northeastern Railway has got very good experience in train sets. Yesterday I was traveling by Vande Bharat, very well maintained, and is a pride for the department. Even after 3 years, both Northern Railway and NE are doing a very good job. It was perfect, very good riding, and I could not see any torn seat and all that. Everything was perfect. I don't know why some complaints. So we have to learn, that is the note, and we have to start at highest level. Then we can cover all HODs, then all officers, and down below. IRMI is doing a very good job by organizing such courses. Here they were organized for EMU, train lighting, etc. And now they have started for train set. I will thank Mr. Yagnik also, SK Yagnik, if he is here, the main force behind such courses, and he has motivated IRMI to not only have these courses for staff and junior officers, but also at the highest level. So not taking much time, let us go ahead, and 3 hours a day should be value adding. So I'll request IRMI to start, please. Thank you. Thank you very much, sir. You had been the you have spearheaded this course by guiding us through the modalities of how to conduct this course. And I'm glad that we have majority of the PHODs in this course. And we will look forward to a very enlightening presentation and a lively discussion. I am on the same foot as everybody else is. So I will pass on the mandate to Suman Raj, who will be taking a lecture on the overview and introduction of train sets. Suman, you can start. Thank you, sir. I hope मेरी आवाज आ रही होगी. Am I audible, Silver? Yes, sir, audible, sir, and the PPT is also visible, sir. Thank you. Good afternoon, sirs. Welcome to this session of Introduction to Train Set. I am Suman Raj, Senior Professor Train Set, IRMI. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जिस ट्रेन सेट की बात कर रहे हैं, it is basically a semi high speed train, speed up to 160 kmph,
tested at 176 kmph. It is capable of quick acceleration of 0.8 meter per second square, and this is achieved through adequate powering, that is roughly 10 kilowatt, and 50% axles of this train are powered axle. It has low axle load. Low axle load means, as per design, it is maximum 17 ton in loaded condition. However, in tare weight, it is about 14.4 ton axle load. And this is initiative of Make in India project. As far as execution is concerned, the technology partner and system integrator is Medha Servo Types Power Limited. 2 rakes already designed, manufactured, released in 2018, and that are called Train 18, and they are already in service and almost trouble-free service. Presently, order on Medha Servo drives for 44 number of rakes, and out of 44 number of rakes, 2 rakes already supplied. Remaining 42 rakes, 22 would be manufactured by ICF, 10 by MCF, and 10 by RCF. Specification, that is a recent specification, that is RDSO specification, RDSO PE spec EMU 0196 2019 revision 0, and I have taken this specification number from PIB. PIB released in the December 2019. A tendering under process for 58 number of rakes, where Indian as well as MNC's company are participating. And as announced in our general budget 2022-23, 400 train sets are planned in next 3 years. So now we move to the contents. अब इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे evolution of train set, basic concepts revisited, why train sets are required, overview of train sets, various systems of train sets, how it is different from other DPRS, that is distributed power rolling stocks, and proposed infrastructure for maintenance. तो as far as तो इसमें जो एलिमेंट ऊपर के इसमें जो 3 पॉइंट हैं that are basically elementary in nature, तो we will quickly glance through, and जो overview और various systems है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ ट्रेन सेट्स की तरफ. ट्रेन सेट का इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था 1893 में, एंड एट दैट टाइम इट वाज मल्टीपल यूनिट ट्रेन कंसिस्ट ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड कैरेजेस. तो 1893 में लिवरपूल ओवरहेड रेलवे उन्होंने 2 कोच का 2 इलेक्ट्रिक कार्स का एक ट्रेन सेट फॉर्म किया, और दोनों में ही ड्राइविंग कैब थे और दोनों में ही कंट्रोलर्स थे जो इस ट्रेन को कंट्रोल करते थे. However, in 1897, multiple unit traction control system was developed by Mr. Frank Sprague, who is also known as father of electric traction, and it was applied in South Side Elevated Railroad System, Chicago. ये multiple unit traction control system is basically आज के डेट के जो ट्रेन सेट है इसका वो बेस है. It means one operator in driving cab can control the motor cars of train जो कि पीछे लगे हुए हैं by use of relays. So in that way, Frank Sprague was called as father of electric traction. ये हम सभी को पता है. Train sets are very popular in commuter service. EMU है, MEMU है, metro है, and now it is very popular in high speed trains also. High speed trains की अगर हम लोग बात करते हैं तो as per UIC definition, on new line speed must be more than 250 kmph, on existing line more than 200 kmph. As far as evolution is concerned, सबसे पहले high speed trains जापान शिनकानसेन in 1964, in the time of Tokyo Olympic 1964. उसके बाद हाई स्पीड ट्रेन्स के काफी डेवलपमेंट हुए इन यूरोप, बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस था कि जापान ने जो डेवलप किया था दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम. हाउएवर जो यूरोपियन कंट्रीज थे दे आर पायोनियर इन ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, लोको ट्रैक्शन, तो उनके जो थे वो सारे के सारे बेस्ड थे कंसंट्रेटेड ट्रैक्शन सिस्टम, दैट इज लोको हॉल्ट. बट जैसे जैसे ट्रेन की लेंथ बढ़ती गई, ट्रेन का लोड बढ़ता गया, तो it was not possible by loco system, so gradually they also fall in the line with distributed traction system.
और 2000 ऑनवर्ड्स जितने भी डेवलपमेंट हुए, चाहे वो जर्मनी में सीमेंस ने डेवलप किया या किसी ने भी, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम को ही उन्होंने फॉलो किया। तो जिससे ये पता चलता है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम हाई स्पीड ट्रेन के लिए कितना आवश्यक है। अब हम लोग आते हैं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। बेसिक कंसेप्ट ये वो कंसेप्ट्स हैं जो कि कल भी वैलिड थे, आज भी वैलिड है और आगे भी वैलिड रहेंगे। आफ्टर ऑल वी ऑल नो दिस, बट क्विकली हम इसके थ्रू ग्लास थ्रू करते हैं। Acceleration, deceleration, maximum acceleration of the train is limited to 0.1 g, that is roughly 1 meter per second square। और अगर पैसेंजर के कंफर्ट को ध्यान में रखा जाए तो इसलिए इसको 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको लिमिट रखा गया है। तो अगर एक 16 कोच की ट्रेन को अगर चलाना है तो ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड मिनिमम इज 709 किलो न्यूटन, बिसाइड्स ट्रेन रेजिस्टेंस और ट्रेलिंग लोड उसमें और ऐड होगा। और अगर ये इसको हम लोको हॉल ट्रेन में चलाएं तो इतने ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए शायद मिनिमम 3 WAP7 लगाने की आवश्यकता होगी। अब रिलेशन बिटवीन एक्सल लोड एंड ड्राइविंग एक्सल्स एंड एक्सेलरेशन, अल्फा NPI D minus D plus TR is equal to MTR into AX. A is the acceleration, M is the mass of the train, alpha is the adhesion coefficient, N is the number of axle, PI is the axle load। तो इस इक्वेशन से हमें यही समझ में आ रहा है कि मोर नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सल विल लीड टू मोर एक्सेलरेशन अंडर सेम एडहेशन एंड सेम एक्सल लोड, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक एंड ट्रेन सेट्स। इस कर्व से हम सभी लोग वाकिफ हैं। दिस इज कांस्टेंट पावर, ट्रैक्टिव एफर्ट इनटू वेलोसिटी, दिस इज हाइपरबोला। ट्रैक्टिव एफर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड एनी लिमिट, इसलिए यहाँ पर एक एडिशन का लिमिट है। वेलोसिटी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकती बिकॉज मैकेनिकल डिजाइन है। ये रेजिस्टेंस का इक्वेशन है, डेविस इक्वेशन, A plus BV plus CD square। A is the bearing resistance, general resistance, B is the flange resistance, and C and D are air resistance। At lower speed, general resistance dominates. At higher speed, it is the air resistance that play actual role। ये बैलेंसिंग स्पीड का ग्राफ है, ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन के लिए है, सो इसके फिगर से ज़्यादा इसमें नहीं। जो इसमें डॉटेड लाइन है, इट इज द ट्रैक्टिव एफर्ट वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, एंड सॉलिड लाइन इज द रेजिस्टेंस फोर्स। जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इट इज द बैलेंसिंग स्पीड। सो इस कर्व से हमें यह देखने से ये पता चलता है कि लोअर एंड फ्लैटर रेजिस्टेंस कर्व विल रिजल्ट इन मोर बैलेंसिंग स्पीड अंडर सेम ट्रैक्टिव एफर्ट स्पीड कर्व। सो में जो अभी जिस ट्रेन सेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एफर्ट मेड टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस इन ट्रेन सेट्स। अब कैसे रिड्यूस किया गया है इस बारे में अब हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट दैट ओवर वी कम टू व्हाई ट्रेन सेट्स आर रिक्वायर्ड। तो जैसा सबसे बड़ा एडवांटेज जो ट्रेन सेट का है, इट इज द एक्सेलरेशन। तो अगर एक राजधानी जो कि लोको हॉल्ड है और दूसरी राजधानी जो ट्रेन सेट से चल रही है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो एक्सेलरेशन 0.22 राजधानी में इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि अगर 21 कोच की अगर 1050 के आसपास अगर इसका वेट है और एक WAP7 लगा करके अगर जा रहे हैं तो WAP7 का जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, इट इज कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट इज अबाउट 228 किलो न्यूटन, सो दैट्स व्हाई इट इज 0.22। so time to achieve 130 kmph is 279 seconds vis-a-vis 51 seconds in train sets, so there is clear cut saving of time। so advantages of train sets over loco halt: higher acceleration, more number of driving axles, this is achieved through more number of driving axles, more number of traction motors, reduced wear on brake parts, दिस इज अचीव्ड थ्रू इलेक्ट्रोडायनामिक ब्रेकिंग, जिसको हम लोग डायनामिक ब्रेक कहते हैं। और डायनामिक ब्रेक इसमें ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है बिकॉज मल्टीपल एक्सल्स पर एक साथ काम कर सकता है, बिकॉज इट इज 50% पावर्ड एक्सल। तो अगर ये 64 एक्सल की ट्रेन है तो 32 एक्सल्स में एक साथ डायनामिक ब्रेक अप्लाई किया जा सकता है। रिड्यूस्ड एक्सल लोड बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर हेवी लोकोमोटिव।
Other advantage is higher degree of redundancy, means performance minimally affected on failure of a single component. से अगर एक ट्रैक्शन मोटर या दो ट्रैक्शन मोटर अगर इलेक्ट्रिकली खराब हो जाते हैं तो परफॉर्मेंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. Higher seating capacity because all cars can contain seats, and besides जो इसके ट्रैक्शन इक्विपमेंट हैं all are under slab, तो जिससे कि सीटिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है. रिड्यूस्ड लोड ऑन कपलर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड पावर. अगर इसे हमें लोकोमोटिव से हॉल करना होता और इतने ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए तो शायद बहुत ही हेवी कपलर की डिजाइन करनी पड़ती, बट चूंकि यहाँ पर it is distributed power, so lower capacity of coupler has been deployed for the service. However, हालांकि ऐसा नहीं है कि लोको हॉल ट्रेन बिल्कुल बेकार है. लोको हॉल ट्रेन हैज आल्सो एडवांटेजेस ओवर ट्रेन सेट because loco haul train has lower train manufacturing and maintenance cost due to less electrical equipment per train, and however noise and vibration in passenger cars are less due to no motor or gearbox in the bogie below. तो ये दो इसके एडवांटेजेस हैं लोको हॉल्ट के, बट स्टिल टोटल पिक्चर में ट्रेन सेट्स आर मोर यूजफुल फॉर ऑपरेशन. नाउ वी कम टू द ओवरव्यू ऑफ ट्रेन सेट्स. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट कंपोजिशन, लेआउट, सीटिंग कैपेसिटी एंड ऑपरेटिंग पैरामीटर्स. कंपोजिशन, this train set is 16 car double headed train sets, total length 384 meter, that is 24 multiplied by 16. Out of 16 car, 8 are motor car, 4 are trailer car, 2 are non-driving trailer car, 2 are driving trailer car. All coaches are chair car at present. Out of 16 coaches, 2 coaches are executive chair car. 2 coaches means these 2 non-driving trailer car are designated as executive class. अगर इसके यूनिट में बात किया जाए तो इसको जो 1 यूनिट है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एंड बेसिक यूनिट एंड मिडिल बेसिक यूनिट. एंड बेसिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ DTC, that is the driving trailer car, motor coach followed by TC, that is trailer coach, followed by motor coach, followed by NDTC. This is non-driving trailer car. अब नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार और ट्रेलर कार में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग आगे बात करेंगे. फॉलोड बाय मोटर कोच, ट्रेलर कार एंड मोटर कार. तो ये एक है 8 कोच का ये कंपोजिशन है, और इसी का मिरर इमेज दूसरा यूनिट है, और दोनों को मिला करके एक 16 कोच की ये ट्रेन है. अब इसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो ट्रैक्शन इक्विपमेंट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ओवर द कोचेज टू अचीव यूनिफॉर्म वेट ऑफ ईच कोच. और इसमें जो यूनिफॉर्मिटी अचीव की गई है बाय मींस ऑफ, जैसे हमारा मोटर कोच है, ट्रैक्शन मोटर कोच में के ट्रॉली में लगा हुआ है, दीज आर हेवी कंपोनेंट्स. अगर इसी में ट्रांसफॉर्मर, पैंटोग्राफ, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, ये सारी की सारी चीजें लगा दी जाए, जो कि आज की डेट में हमारे EMU के मोटर कोच में लगाई जाती है, तो हमारे यहाँ EMU के मोटर कोच का वेट इज अबाउट 60 टन, वेयर एज द वेट ऑफ ट्रेलर कोच इज अराउंड 32 टन्स. तो यहाँ पर जो हमारे कन्वेंशनल हमारे EMU या मेमू है, इसमें एक काफी मार्जिन है, काफी. और जहां तक कि इसकी बात है, ट्रेन सेट में इसको रफली यूनिफॉर्म रखा गया है. तो इसमें ट्रांसफॉर्मर, पैंटोग्राफ, ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ 5 टन का होता है, पैंटोग्राफ, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, इन सारी चीजों को माउंट किया गया है TC के ऊपर, ट्रेलर कोच के ऊपर, जो कि ट्रेन के कंपोजिशन का 3rd कोच होता है. द 2nd and 4th कोच आर मोटर कोच. मोटर कोच में ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक्शन कन्वर्टर इज फॉर ईच बोगी, ट्रैक्शन मोटर 2 पर बोगी, ब्रेक चॉपर रजिस्टर ये किया गया है. DTC ये हमारा ड्राइविंग ट्रेलर कार है, इसमें बैटरी चार्जर, एयर कंप्रेसर, इसको यहाँ डिप्लॉय किया गया है.
और जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था NDTC, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार, तो NDTC जो भी इक्विपमेंट DTC में रखे गए हैं, बैटरी चार्जर, एयर कंप्रेसर, उसको NDTC में रखा गया है. So by that point of view, NDTC and TC both are different. Both are ट्रेलर कार, लेकिन ये दोनों अलग है. और इससे वेट की एक यूनिफॉर्मिटी अचीव की गई है. 49.36 टन, this is for NDTC, to 57.61 ton for motor coach. Of course, motor coach is the heaviest. ये 16 कोच का रेक है. जैसा हम लोग देख रहे हैं, DTC आइदर एंड, और अगर सेंटर लाइन में अगर एक लाइन अगर खींच दी जाए तो इट इज बेसिकली मिरर इमेज. ये इसका लेआउट है. लेआउट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. बस इतना ही बताना चाहेंगे कि जो सीटिंग कैपेसिटी है और जो सीट की जो पिचेस है वो सेकंड क्लास या चेयर कार क्लास में इट इज अबाउट 940 mm, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, जो NDTC है, इसमें इट इज 1141. तो इट इज क्वाइट कंफर्टेबल एज कंपेयर टू, अगर हम एयरलाइंस वगैरह से अगर हम कंपेयर करें तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा लेग स्पेस है, लेग रूम है. सीट का पिच भी काफी अच्छा है. एग्जीक्यूटिव क्लास में इट इज 1141 एंड इन सेकेंड क्लास इट इज 940. तो ये तो लेआउट, नाउ लेआउट पार्ट इज ओवर. सिटिंग कैपेसिटी, ये टोटल 16 कोचेस में 1128, जिसमें कि 104 एग्जीक्यूटिव क्लास है, रिमेनिंग सेकेंड क्लास में चेयर, एसी चेयर कार. ऑपरेटिंग पैरामीटर, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं. 160 kmph, टॉप टेस्ट स्पीड 176, maximum design axle load is 17 ton. Actual it is 16.5 tons only. Starting acceleration 0.8 meter per second square. Deceleration 1 meter per second square. 50% powering, जैसा हम लोगों ने देखा कि out of 16 coaches, 8 are motor coach, 4 are basic unit, 1 panto per each BU. ये बेसिक यूनिट में हम लोगों ने देखा था, एक एंड बेसिक यूनिट था, एक मिडिल बेसिक यूनिट था. तो फॉर ईच बेसिक यूनिट देयर इज 1 पेंटोग्राफ. इट मींस इस टोटल 16 कोचेज में 4 पेंटोग्राफ है, क्योंकि इस 16 कोच में 4 TC हैं और ईच TC के ऊपर पेंटोग्राफ माउंटेड है. ऑल प्रोपल्सन इक्विपमेंट्स आर अंडर स्कैन. नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरियस सिस्टम्स में अगर हम लोग बात करें, कोच का शेल, bogie, propulsion system, train control management system, which is the heart of the train, braking system, couplers, safety feature, interior and passenger amenity item. So now we will discuss one by one. Shell. In shell we will be talking about construction and steps to reduce air resistance, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि आगे हम लोग बात करेंगे. इसमें FRP नोज कोन, फ्लश्ड डोर और सील्ड गैंगवेज, ये 3 चीजें को डिप्लॉय करके एयर रेजिस्टेंस को लोअर करने का प्रयास किया गया है. हाउएवर, अगर एयर रेजिस्टेंस के कंपोनेंट की बात अगर की जाए तो अबाउट 50% रेजिस्टेंस बोगी और बोगी के कंपोनेंट से आता है, व्हील और व्हील के कंपोनेंट से आता है. Perhaps this is the reason कि जो हाई स्पीड ट्रेन्स होते हैं उनके इवन बोगीज आर कवर्ड. बाकी के जो एयर रेजिस्टेंस हैं वो फ्रंट, फिर पेंटो, ओवरहेड इक्विपमेंट्स, उससे आते हैं. बट 50% जो एयर रेजिस्टेंस है वो बोगी और बोगी कंपोनेंट से आता है. तो however, because this is semi high speed and this is not high speed, so इसलिए यहाँ पर बोगी को कवर नहीं किया गया है. अगर ये हाई स्पीड होता तो शायद बोगी को कवर करना was the must. As far as construction is concerned, this is tubular structure and more or less
सिमिलर टू LHB शेल। इनफैक्ट इसकी लेंथ वगैरह भी सब कुछ सेम है, तो इनफैक्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी जो है वो या फिटिंग वगैरह भी जो है वो ICF में LHB के जो जिग एंड फिक्सचर हैं उसी के ऊपर किया जाता है। As far as steel is concerned, construction is concerned, it is very much similar to LHB shell. IRSM 41 Corten steel under frame with center sill design. Rough floor इसमें हटा दिया गया है। 2 mm thick stainless steel cover sheet on under frame instead of rough floor. जैसे LHB shell में साइड वाल, रूफ और एंड वाल के मेंबर्स जो है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। रूफ शीट ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का जैसे LHB में होता है वैसे इसमें भी होता है। हेड स्टॉक विथ लोअर लोकेशन ऑफ सेमी परमानेंट कपलर 940 mm फ्रॉम रेल लेवल। अब इसमें कोच टू कोच के बीच का जो कपलर है उसकी हाइट 940 mm फ्रॉम रेल लेवल है, इंस्टीड ऑफ जो हमारे नॉर्मल हमारा 1105 to 1090 होता है। और इसको लोअर करने का यही उद्देश्य था, यही मकसद था, टू अकोमोडेट सील्ड गैंगवेज। ये सील्ड गैंगवेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग द एयर रेजिस्टेंस। तो इसको अकोमोडेट करने के लिए और एक बिना किसी हिंड्रेंस के पैसेंजर का मूवमेंट को प्रोवाइड करने के लिए सील्ड गैंगवेज को डिप्लॉय किया गया। और सील्ड गैंगवेज को डिप्लॉय करने के लिए ये कपलर की हाइट जो है उसको 940 mm किया गया। नाउ वी मूव टू बॉगी, मोटराइज, नॉन मोटराइज। यहाँ मोटराइज हो या नॉन मोटराइज हो, बोगी फ्रेम और बाकी की जितनी भी चीजें हैं ऑल आर सेम, एक्सेप्ट मोटराइज बॉगी में ट्रैक्शन मोटर, गियर केस, बुल गियर वो इसमें पिनियन इसमें डिप्लॉय किया। अदरवाइज बोगी फ्रेम, in order to bring the standardization, bogie frame, brake cylinder, everything, suspension arrangement, air spring, everything is same. Traction motor का arrangement, it is fully suspended traction motor and with no direct mounting on axle, जैसे हमारे conventional locomotive है, हमारे conventional EMU में होता है। Gear train है, air spring as secondary suspension. A special feature of this bogie, bolsterless design, इसमें bolster नहीं है और कोच की बॉडी सीधे एयर स्प्रिंग के ऊपर माउंट होती है। Fully suspended traction motor. Traction motor is not suspending on the axle, it is suspending on the bogie frame so that कि अनस्प्रंग मास को रिड्यूस किया जा सके। डिस्क ब्रेक माउंटिंग ऑन व्हील डिस्क, लाइक जैसे हमारे फिएट बॉगी में होता है कि एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क, यहाँ पर जो ब्रेक डिस्क की माउंटिंग है वो एक्सल के ऊपर नहीं है बल्कि वो व्हील डिस्क के ऊपर है, और जो ब्रेक सिलेंडर है वो हमारा सस्पेंड करता है बाय फ्रॉम ट्रॉली फ्रेम। एयर स्प्रिंग इज यूज्ड एज सेकेंडरी सस्पेंशन। पोटेंशियल स्पीड इज अप टू 200 kmph। ये फिएट बॉगी विजा दिस ट्रेन सेट बॉगी। As far as wheelbase is concerned, a wheelbase of this train set bogie is slightly more. It is 2700, whereas in Fiat bogie it is 2560. And one of the reason that I, मतलब जैसा मुझे लग रहा है कि शायद perhaps ये एक रीजन होगा इसके wheelbase को बड़ा करने का, that to accommodate traction motor and this gear train arrangement. इसमें brake caliper, it is hanging from Y frame, that is trolley frame, or brake disc, it is directly mounted on, it is bolted on wheel. So this is wheel mounted brake disc और ये brake caliper है। और यहाँ fully suspended traction motor है जो कि flexible coupling के द्वारा pinion से जुड़ा हुआ है। A pinion is driving the bull gear. ये कुछ पैरामीटर हैं wheel के, very much identical to our EMU, that is new wheel EMU का motor coach का, that is 952 new wheel and fully worn is 877. Number of traction motor per motor coach 4. Maximum tractive effort of motor coach is 106 kN. It means अगर 16 कोच की हमारी ट्रेन है तो
यह ट्रेन सेट अबाउट 848 किलो न्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकती है. मैक्सिमम पावर एट व्हील per motor coach during motoring, it is roughly 1300 kilowatt. Gear ratio is basically 19 by because इसमें pinion has 19 teeth and bull gear has 98 teeth. So gear ratio is 5.158. Maximum braking effort is 94 kilonewton. Gear efficiency 98%. Maximum power at wheel during braking is 1567 kilowatt. So these are the advantages of train set bogie over Fiat bogie. Number one, it is the reduced weight due to bolsterless design, and the second advantage is reduced unsprung mass because the traction motor is fully suspended and it is resting on the bogie, so there is a reduction in unsprung mass. Here, traction motor coupled with pinion with flexible coupling, pinion geared with bull gear, and coupling gear train inside gearbox. And this gearbox is very heavy in this case. Gearbox is about 480 kilogram. Now we move to the propulsion system. Propulsion system, this is the AC overhead line. Pantograph power collect करता है, followed by circuit breaker. उसके बाद it is feeding to the transformer. In fact, pantograph circuit breaker के बाद एक HT लाइन और है, और वो HT लाइन रन करती है कोच के रूफ के ऊपर, जिससे चारों पेंटोग्राफ कनेक्टेड होते हैं, और यह रन करता है फ्रॉम 3rd कोच टू 14th कोच. एक HT लाइन कोच के रूफ के ऊपर रन करती है. तो पेंटोग्राफ ने पावर कलेक्ट किया, फॉलोड बाय सर्किट ब्रेकर, इट फीड्स टू HT लाइन. बिकॉज इसमें 4 बेसिक यूनिट्स हैं, इट मींस 4 मोटर, 4 ट्रेलर कोच हैं. 4 ट्रेलर कोच मींस 4 पेंटोग्राफ हैं. तो एट ए टाइम इसमें 2 पेंटोग्राफ वर्किंग में रहते हैं. 2 हमारी रिडंडेंसी, आइदर 1 and 4 काम करेंगे या 2 and 3 काम करेंगे. तो पेंटोग्राफ फीड्स टू ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज AC. ट्रांसफार्मर फीड्स टू, ये पूरा सेट होता है, इस पूरे सेट को कहा जाता है LTC, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर. तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में देयर आर 6 कॉइल्स, जिसमें 4 कॉइल्स जो है वो फीड करते हैं ट्रैक्शन लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर को, और 2 कॉइल फीड करते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर. ट्रैक्शन कन्वर्टर जैसा इसका नाम ही है, इसका काम है जो कि हर ट्रैक्शन कन्वर्टर हर बोगी के लिए एक होता है, और इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर से पावर निकला वो 4 कॉइल का पावर इट विल गो टू मोटर कोच, whereas transformer and pantograph is in trailer coach. उसके बाद ट्रैक्शन लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, यह AC converted to DC, DC jacked up to 1800 volt DC constant, then converted to AC and finally fed to 2 numbers of 3-phase traction motor. However, auxiliary converter is mounted in the trailer car itself. Auxiliary converter का यह काम है कि यह 3-phase AC आउटपुट भी देता है, जो कि ड्राइव्स को चलाने का काम करते हैं. ड्राइव्स मींस AC ड्राइव, कंप्रेसर मोटर ड्राइव्स, हीट एक्सचेंजर या ट्रांसफार्मर का कूलिंग का ड्राइव, इसके अलावा जितने भी ड्राइव्स हैं उन सब को चलाने का काम करता है. और जो DC आउटपुट होता है, इसका काम होता है कि लाइट्स, फैंस, नॉट फैन, लाइट्स और बाकी बैटरी चार्जिंग, उन सारे एक्टिविटीज के लिए. तो सिमिलरली इसी का मिरर इमेज नीचे वाला है. तो इससे ट्रैक्शन कन्वर्टर, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर फीड्स टू ट्रैक्शन मोटर, ऑक्सिलरी फीड्स टू AC equipment and other battery charging and auxiliary circuits.
तो ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 2880 किलोवोल्ट एम्पियर केवीए। लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, इसका आपको रेटिंग 554 केवीए है। ट्रैक्शन मोटर 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर 248 किलोवाट। दिस इज कंटिन्यूअस रेटिंग। शॉर्ट ड्यूरेशन रेटिंग इज मोर। वन ट्रांसफार्मर फीड्स टू 2 मोटर कोच। इसका मतलब एक ट्रांसफार्मर 8 ट्रैक्शन मोटर को फीड कर रहा है। वन ट्रैक्शन कन्वर्टर feeds to 2 traction motor. It means for each bogie there is 1 traction converter. Auxiliary converter feeds 3-phase AC 415 volt to drives and 110 volt to auxiliaries. Now we move to the train control and management system, which is the heart of this operation, train set operation. So it consists of इंटरफेस विथ ड्राइवर्स डिस्क, जहां पर कि ड्राइवर्स को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ट्रेन कैसी चल रही है, क्या है। सेकंड इज द पेंटोग्राफ कंट्रोल, बिकॉज एट ए टाइम आउट ऑफ 4 2 पेंटोग्राफ काम करेंगे। सो लोअरिंग एंड रेजिंग। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल इज फॉर सिंक्रोनाइज्ड ट्रैक्शन। रीजनरेटिव ब्रेक कंट्रोल, रीजनरेटिव ब्रेक कंट्रोल ये है जिस समय रीजनरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोडायनामिक ब्रेक अप्लाई हुआ, तो जो 3 फेज एसी ने पावर जनरेट किया उसको कंट्रोल करके और फाइनली उसको सिंगल जो लाइन में वोल्टेज आ रहा है ओवरहेड लाइन में, उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हुए, उसके फेज से मैच कराते हुए उसे वापस ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन में भेजना। तो दैट इज रीजनरेटिव ब्रेक कंट्रोल। ब्रेक ब्लेंडिंग, brake blending, this is very beautiful part. This is the optimization of brake force in combination of electrodynamic and चूल्हे को मेंटेन करने अच्छा आ गए। brake blending, this is the very beautiful part. This is the optimization of brake force in combination of electrodynamic and electropneumatic. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मोटर कोच है उसमें इलेक्ट्रोडायनामिक ब्रेक भी लगेगा, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक भी लगेगा, while ऑप्टिमाइजिंग रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन। व्हेयरएज जो हमारे ट्रेलर कोच हैं उसमें क्या लगेगा, उसमें हमारा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक लगेगा। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन ये भी इसमें है। इंटरफेस विथ आरएमपीयू कंट्रोल, दैट इज आवर एसी। इंटरफेस विथ डोर कंट्रोल, बिकॉज डोर ओपन रहेगा तो ट्रेन नहीं चलेगी, जब तक डोर बंद नहीं होगा तब तक ट्रेन नहीं चलना चाहिए। कंप्रेसर कंट्रोल इसलिए है बिकॉज देयर आर 4 कंप्रेसर, बिकॉज देयर आर 2 DTC एंड 2 NDTC, और सभी में एक कंप्रेसर्स दिए हुए हैं, तो देयर आर 4 एयर कंप्रेसर्स। तो आउट ऑफ 4 एनी टाइम 3 एयर कंप्रेसर वुड रन। पार्किंग ब्रेक कंट्रोल, पार्किंग ब्रेक जो हमारे नॉर्मल कोचेज होते हैं एक्सेप्ट गार्ड वैन, पार्किंग ब्रेक नहीं होता है, बट इसमें एक पार्किंग ब्रेक कंट्रोल है एंड इट इज अप्लाइड व्हेन देयर इज नो एयर प्रेशर। लाइट कंट्रोल, विजिलेंस कंट्रोल, दिस इज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ लोको पायलट्स। क्रूज कंट्रोल, दैट इज द फिक्सिंग ऑफ स्पीड। इवेंट रिकॉर्डिंग, दैट इज द रनिंग डेटा स्टोरेज। तो दिस इज द ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ वी मूव टू ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम, वेयर इज इलेक्ट्रोडायनामिक ब्रेकिंग, जिसको हम लोग डायनामिक ब्रेक बोलते हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग जो हमारा न्यूमेटिक ब्रेक है। ब्लेंडेड ब्रेकिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट, ये इसका एक अच्छा एस्पेक्ट है जिसको आगे हम लोग बात करेंगे। हाई डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, हाई डिग्री ऑफ रिडंडेंसी का मतलब इसमें एक पैरेलल मैकेनिकल ब्रेक, एक पैरेलल एयर BPFP का भी पैरेलल ब्रेक पाइप 5 kg पर चार्ज किया हुआ भी रहता है कि अगर सब कुछ चले जाए तो वो तो जिंदा रहेगा। पार्किंग ब्रेक, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। EP ब्रेक सिस्टम विथ लेटेस्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। ऑप्टिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर अप्लाइड बाय मॉनिटरिंग ऑफ एयर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग इन अकॉर्डेंस विथ लोड ऑफ कोच। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एयर स्प्रिंग है इसकी हाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसमें वेरी क्या कर रहा है, उसके अंदर का एयर प्रेशर। तो उस एयर प्रेशर को मॉनिटर करके ये एक कंप्यूटर
जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो यह कैलकुलेट करता है कि व्हाट वुड बी द ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर कोच, और उसी के अकॉर्डिंग वो ब्रेक अप्लाई करता है। इसलिए ड्राइवर जब भी ब्रेक, जो लोको पायलट है वो जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रोडायनामिक ब्रेक है वो अप्लाई किया जाता है, और जो ट्रेलिंग कार्स हैं उसमें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक उसमें अप्लाई किया जाता है, और फिर ये कैलकुलेट करके रिक्वायरमेंट जो है वो देखी जाती है कि इसमें कितना इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स दोनों मिलाकर के टोटल शुड नॉट बी मोर देन 94 किलो न्यूटन, दैट इज अ ब्रेकिंग एफर्ट। अदरवाइज इसमें व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन जो हमारे एलएसबी कोच में जैसा होता है रफली वैसा ही है। जर्क कंट्रोल, क्विकर एक्सेलरेशन एंड रिलीज, क्विकर एप्लीकेशन एंड रिलीज इसलिए है बिकॉज इट इज एक्चुएटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड नॉट बाय द ड्रॉप इन ब्रेक पाइप प्रेशर। सो फॉर दैट रीजन इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी इज मस्ट। अगर इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी अगर नहीं होती है इस ट्रेन में तो इसके ब्रेकिंग सिस्टम को डिफंक्ट माना जाता है। सो इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी इज मस्ट। जैसा हम लोगों ने पहले बात किया था ऑयल फ्री कंप्रेसर, इसके जो कंप्रेसर्स हैं दे आर ऑयल फ्री कंप्रेसर। इसमें कोई लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं है, इट इज सम सॉर्ट ऑफ टेफ्लॉन रिंग वगैरह को यूज करके बनाया गया है। आफ्टर ऑल इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो किसके पास, नॉर ब्रांड से, नॉर का है, तो उनका ये ऑयल कंप्रेसर है, ऑयल फ्री कंप्रेसर है जो कि 4 नंबर पर ट्रेन सेट है and 3 numbers runs at a time. Now we move to couplers. The objective of coupler is pulling, buffing and to absorb the buffing energy and to provide flexibility to each rolling stock. Flexibility means lateral and vertical movement. So coupler in DTC front end is of H-type CVC. जैसे हमारे एलएसबी में लगा होता है एच टाइप सीवीसी वैसे ही इसमें है, और ऑफ कोर्स एच टाइप सीवीसी हैज एंटी क्लाइमिंग फीचर। हाउएवर बिटवीन कोच टू कोच इट इज सेमी परमानेंट कपलर सप्लाइड बाय मेसर्स डेनलर। दिस इज इक्विप्ड विथ ड्राफ्ट गियर, देयर इज नो स्लैग, इट इज एब्सोल्युटली जर्क फ्री, इट आल्सो हैज एंटी क्लाइमिंग फीचर जस्ट लाइक साबो कपलर। पुलिंग फोर्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पुलिंग फोर्स के लिए ये डिजाइन है ओनली 600 किलो न्यूटन एंड बफिंग के लिए ओनली 1000 किलो न्यूटन। रीजन क्योंकि बिकॉज दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक, तो इसलिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कपलर दैट गोज डाउन, तो इसलिए यहाँ पर कम कैपेसिटी के कपलर लगाए गए हैं। हाइट जैसा हम लोगों ने पहले बात किया कि हाइट को 940 mm रखा गया है टू अकोमोडेट सील्ड गैंगवेज। सेफ्टी फीचर के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो एंटी क्लाइमिंग फीचर है एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय सेमी परमानेंट कपलर। फायर सेफ्टी, प्रेजेंट जो ट्रेन 18 रन कर रही है उसमें एज सच फायर डिटेक्शन पैसेंजर एरिया के लिए नहीं है, बट जो फ्यूचर वाले जितने भी हैं जैसा कि आरडीएसओ का स्पेसिफिकेशन जिसके जो पीआईबी में जो डाला गया था उसको पढ़ने से यह पता चलता है कि आगे जितने भी आएंगे उसमें फायर डिटेक्शन विद अलार्म सिस्टम जो है वो इस स्पेसिफिकेशन जो रिवीजन 5 है इसके आधार पर इसमें प्रोवाइड करना है। और अगर ये फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम लगता है तो दिस मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद द ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज जो फायर डिटेक्शन सिस्टम है इसका जो अल्टीमेट एक्शन है इट इज द ब्रेक एप्लीकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन कैन बी डन ओनली विथ इंटीग्रेशन विथ टीसीएमएस। अब हम लोग इंटीरियर एंड पैसेंजर एमिनिटीज के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पैनलिंग है, सीट्स हैं, सील्ड गैंगवेज, टॉयलेट्स, रीडिंग लाइट, एयर कंडीशनिंग। तो इसमें एफआरपी इंटीरियर पैनलिंग है,
पार्टीशन विथ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टच फ्री स्लाइडिंग डोर। अनलाइक हमारे एसी कंपार्टमेंट में जो हिंज वाले डोर होते हैं, उसके जगह इट इज टच फ्री स्लाइडिंग डोर। इट विल सेंस और डोर अपने आप खुलेगा और बंद होगा। एंड वॉल विथ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन डोर। कंटिन्यूअस विंडो ग्लास डिजाइन, जैसा बाहर से लगता है इट इज बेजललेस, बट अंदर से बट एक्चुअल में इट इज नॉट बेजललेस, बीच बीच में इसमें सपोर्ट है। स्पेशल एसी डक्टिंग अरेंजमेंट इसमें दिया गया है बिलो पेंटोग्राफ, बिकॉज जहां पर पेंटोग्राफ लगा हुआ है वहां पर रूफ की हाइट को कम किया गया है, तो वहां से एयर फ्लो को कराने के लिए वो इसमें एक स्पेशल डिजाइन किया गया है जिससे कि एयर फ्लो हो सके। Corrugated roof panel designed to improve aesthetic. Sunken type tie-up seat arrangement. On-board infotainment system, ये infotainment system जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह में होता है या तेजस में भी इससे पहले लगाया गया था। मिनी पेंट्री स्टोरेज एरिया। इमरजेंसी अलार्म पुश बटन इनसाइड द कंपार्टमेंट इन प्लेस ऑफ अलार्म चेन। हमारे नॉर्मल ट्रेन में अलार्म चेन होता है जिससे इमरजेंसी, जिससे बीपी को हम लोग वेंट करते हैं ब्रेक पाइप को, तो यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म पुश बटन है जिससे सिग्नल जाएगा गार्ड एज वेल एज लोको पायलट को एंड दे विल अप्लाई द ब्रेक। टॉक बैक यूनिट, इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन टॉक बैक। इनसाइड डिस्प्ले सिस्टम, आउटसाइड डिस्प्ले सिस्टम, एक्चुअल में लिस्ट इसकी काफी लंबी है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आईसीएफ के ऑफिसर जो है वो उसको बताएंगे, तो परहैप्स वो इसको डिटेल में कवर करेंगे। सीट्स इन एग्जीक्यूटिव क्लास इट इज रिवॉल्विंग टाइप, इन चेयर कार इट इज रिक्लाइनिंग टाइप। और रिक्लाइनिंग टाइप में इसमें ये खासियत है कि अगर ये रिक्लाइन होता है तो ये पीछे वाले को इन्फ्रिंज नहीं करता है, इसका जो बैक रेस्ट है ये अपने आप में मूव करता है। व्हेयरएज रिवॉल्विंग सीट, इसको 180 डिग्री से रिवॉल्व किया जा सकता है। सील्ड गैंगवेज, जिसके बारे में पहले भी हम लोगों ने बात की कि दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर के जिससे एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया जाता है। दिस इज वेस्टिब्यूल पोर्शन, और वेस्टिब्यूल पोर्शन में ये इनसाइड पोर्शन और आउटसाइड पोर्शन के बीच में कैविटीज है, और इस कैविटी के थ्रू आईवीसी और ये सारी चीजें इसके थ्रू मूव करती है, तो इससे ये फायदा होता है। प्लस जो एसटी केबल है वो इस सील्ड गैंगवेज के ऊपर ऊपर मूव करती है, ऊपर ऊपर इसको ले किया जाता है। टॉयलेट्स, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, 2 numbers per coach, diagonally opposite. एयर कंडीशनिंग RMPU, 2 numbers per coach, 8 ton कैपेसिटी। एडिशनल एसी प्रोवाइड किया गया है इन ड्राइविंग कैब ऑफ 2 ton कैपेसिटी, सो दैट कि वो उसको जब चाहे ऑन कर सके, जब चाहे उसको ऑफ कर सके। Now we come to, now system part is over. Now we move to how it is different from other DPRS. अगर इसको हम कंपेयर करें EMU या मेमू के साथ, तो EMU और मेमू की जो एक्सेलरेशन है इट इज अबाउट 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, whereas ट्रेन सेट में इट इज अबाउट 0.8, तो इट इज substantially higher speed potential, because MEMU or EMU are fit for 96 kmph or 100 kmph, and it is fit for 160 kmph. Better riding, और इसके अलावा इसमें एक और एडवांटेज लाइक इसमें अनइवन वेट है, तो जिसके चलते वो ट्रैक्टिव एफर्ट का ट्रांसमिशन या फिर व्हील वेयर वगैरह इसमें ज्यादा है, तो इसमें थोड़ा कम है। हाई स्पीड ट्रेन से अगर इसको कंपेयर करें तो एक तो व्हील प्रोफाइल का डिफरेंस है, तो बिकॉज दिस ट्रेन, दिस आवर ट्रेन सेट्स इट हैज टू रन ऑन द ट्रैक, जो ट्रैक हमारे यहाँ ले किया हुआ है इसके ऊपर, तो इसलिए व्हील प्रोफाइल इसमें चेंज नहीं किया गया है। हाउएवर अगर हाई स्पीड ट्रेन की तरफ अगर जाना होगा तो देन व्हील प्रोफाइल नीड्स टू बी चेंज्ड। जो हमारे यहाँ व्हील प्रोफाइल अभी यूज होता है इट इज रफली 1:20 का टेपर है, इसको इसी कोनिसिटी हैज टू बी रिड्यूस्ड। जो हाई स्पीड में यूज करते हैं इट इज 1:40। एक्सल्स, हाई स्पीड ट्रेन के जो एक्सल्स होते हैं दे आर हॉलो, whereas जो अभी हमारे ट्रेन सेट का है इट इज सॉलिड एक्सल, बिकॉज
क्योंकि यहाँ पर व्हील के प्रोफाइल को अगर 1:40 अगर रखना पड़ता है हाई स्पीड ट्रेन में, तो देर इज कंप्रोमाइज ऑन कर्व नेगोशिएबिलिटी। तो विथ सेम व्हील प्रोफाइल जो 1:20 का अभी हम लोग यूज करते हैं, उससे हम जो भी इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड है उसके कर्व को नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर हाई स्पीड ट्रेन में जाना होगा तो कर्व नेगोशिएबिलिटी विल बी वेरी पुअर, क्योंकि व्हील की जो कोनिसिटी है इट इज डिक्रीज्ड। Similarly, emergency braking distance of high speed train is very high, whereas for this train set it is almost equal or even less than the conventional trains. In high speed trains, measures has been taken to reduce the air resistance. जैसे व्हील, ट्रॉली, उनको भी कवर किया गया, because about 50% air resistance comes from wheel and bogie components. तो उसको हाई स्पीड ट्रेन्स में उसको कवर किया गया है। अगर ये हाई स्पीड बट इसमें जो सेमी हाई स्पीड है इसमें उसको कवर नहीं किया गया। नाउ वी मूव टू आवर लास्ट पार्ट, दैट इज द प्रोपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेंटेनेंस। हाउएवर एक बार मौका मिला था हम लोगों को मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सरिता विहार डिपो को देखने का। तो हाउएवर ये मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग से सेशन है, वो कॉपमो से पीडी साहब उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। हाउएवर जस्ट उसको टच करने के लिए, इट नीड्स अ ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, दैट इज ट्रेन वॉशिंग प्लांट, व्हील डायग्नोस्टिक सिस्टम, पिट लाइन, सिक लाइन, टेस्ट रूम्स। ये जिस तरह से डीएमआरसी कोच का पिलर डिजाइन है, it is totally covered shed, it is covered shed full length, और चूंकि इसकी क्लीनिंग, इसकी वॉशिंग जो है वो ऑलरेडी वॉशिंग प्लांट में हो चुकी है, सो द ट्रेन इज वेरी क्लीन। एंड सिमिलरली जो इसका पिट लाइन है इट इज ऑल्सो वेरी क्लीन, एंड दिस वाज जस्ट रेगुलर विजिट। तो मतलब रेगुलर विजिट के टाइम में दिस पिट लाइन वाज सो क्लीन। दिस इज पिलर डिजाइन, जिसमें इजीली आदमी एक तरफ से जो मेंटेनेंस स्टाफ हैं वो मूव कर सकते हैं। लाइटिंग और इल्यूमिनेशन इज क्वाइट गुड। ये ऑटोमेटिक व्हील डायग्नोस्टिक सिस्टम, ऑफ कोर्स ये अभी तो डीएमआरसी में नहीं है, बट हमें लगता है फ्यूचर में इंडियन रेलवेज में ये आएगा ही आएगा। तो व्हील डायग्नोस्टिक सिस्टम टू मेजर व्हील प्रोफाइल and to see any defect etc. ये है डीएमआरसी के ही, उसी के पिट लाइन से अटैच इनका ये सम सॉर्ट ऑफ सिक लाइन है, जहां पर कि इनके पास इंडिविजुअल जैक्स से, जैसे हम लोग अपने सिक लाइन में इंडिविजुअल जैक्स से लिफ्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज लिफ्टिंग जैक्स से, तो इस तरह का सिस्टम इनके यहाँ नहीं है। इनके यहाँ ये एक साथ 3 कोच को मिनिमम ये लिफ्ट कर सकते हैं बाय अंडर फ्लोर व्हील लिफ्टिंग प्लांट। ये जितने भी येलो कलर के दिख रहे हैं इसमें बहुत सारे लिफ्टिंग पैड्स, लिफ्टिंग जैक्स हैं जो कि इसमें संकीर्ण है। इसको अगर लिफ्ट करते हैं तो ये सिंक्रोनाइजली ये सारे कोचेस को एक साथ ही लिफ्ट कर सकता है। सिमिलरली इसको थोड़ा सा नजदीक से पिक्चर लिया गया, इसमें जितने भी इसमें पैड्स जैसे दिख रहे हैं वो सारे के सारे जैक्स हैं, जो कि जब जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, अगर हम सिर्फ ट्रॉली को लिफ्ट करना चाहें तो सिर्फ ट्रॉली को लिफ्ट कर सकते हैं, बॉडी को लिफ्ट करना है हम बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं। और चूंकि इसकी डिजाइन स्टैंडर्डाइज है, इसके प्लेसमेंट इसके स्टैंडर्डाइज है, तो इसलिए अगर एक साथ अगर चलाया जाए तो सारे के सारे एक साथ ऑपरेट होंगे और पूरे के पूरे 3 कोच 4 कोच जितने हैं सबको एक साथ हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। So just to summarize what we have discussed here, evolution of train sets, basic concepts, why train sets are required, overview of train sets, various systems and how it is different from other DPRS, and finally proposed infrastructure for maintenance. Our reference was Camtech publication, that is the introductory handbook of Train 18 that was published in November 2018.
कुछ स्टडी मटेरियल्स पावर पॉइंट और पीडीएफ आईसीएफ से लाए गए थे। हमारी फैकल्टी वहाँ ट्रेनिंग में गए थे तो उन्होंने लाया था। आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन जिसका जिक्र पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 22 दिसंबर में जिक्र है, वो भी हमारे रेफरेंस में है। सर थैंक यू सर।